बचपन में पला बड़ा हूँ इस मिट्टी पर माँ। बचपन में पला बड़ा हूँ इस मिट्टी पर। माँ डांट लगाती थी मुझे मिट्टी खाने पर। माँ डांट लगाती थी मुझे मिट्टी खाने पर। विकास की गति के आगे मिट्टी की उस दुर्बलता को नहीं देखा। विकास की गति के आगे मिट्टी की उस दुर्बलता को नहीं देखा। आज यही लापरवाही हम सब पर भारी पड़ गई। आज यही लापरवाही हम सब पर भारी पड़ गई। अनदेखी हम पर हावी हो गई। Nestled in the Himalayas, the state of Himachal Pradesh is a place of pristine beauty and amazing stories. It was here that Azim Premji University organized a series of nature writing workshops in association with multiple schools across various cities of the state. Starting at the city of Solan, we were very fortunate to be working in a school which has a lot of ecological and environmental work being done at the school with the various students that they have. They have an eco club wherein students get together and do different kind of work in relation to conservation and awareness efforts. The student at the school joined the workshop with much enthusiasm and they shared their stories and poems with us which were amazing in their regards for their concerns and awareness about environmental issues. Next, we moved to Shimla where we were again working with a government school and we were joined by multiple teachers and principals from different schools together to work together and learn about nature in a very innovative style. The workshop here again was very interesting in the kind of stories that it threw up. And finally, in the last leg of our workshop series, we arrived in the city of Kullu and worked with Cambridge School and the students out there. It was very interesting and amazing for us to work with school children and teachers to use the art of storytelling to talk about concerns and issues that affect us all in terms of nature and environment. It was a very heartening and enriching experience for us, wherein we shared our experiences and the art of storytelling with the kids and the mentor, and learned a lot in the bargain about their concerns, about their worries for the bigger climate change shifts that are taking place in the Himalayan region. To build good habits, it's important that we catch students and children at the right age, which is why this time we went to various schools in Himachal Pradesh, a state that is highly vulnerable to climate change. We interacted with students from classes ranging from class 6 to 12 and made them aware about environmental pollutants. We conducted a lot of workshops with them with regards to this and made them aware about how to lead a sustainable life, how to take care of the environment and lead a lifestyle that is, in sync with their ecology and with the environment. We also collaborated with Eco Vigyan, an NGO based out of Himachal Pradesh that works extensively with a lot of different schools in Himachal Pradesh, especially with ecology clubs or eco clubs as they are called. In addition to that, we also made the students aware about different career opportunities that are available in the domain of environmental sciences or green jobs. एक्चुअली मैं जब ये वर्कशॉप अटेंड करने आई थी तो मेरे दिमाग में यही था कि एज़ यूजुअल जैसी वर्कशॉप्स होती हैं, कोई आगे से लेक्चर देगा, हम सुनेंगे और ऐसा चलेगा, इस तरह से मेरा कुछ विचार था। पर जब मैंने यहाँ पर आकर इस वर्कशॉप को अटेंड किया, सुबह से अब करीब 3:30 बजने वाले हैं, परंतु मुझे जो महसूस हो रहा है कि मैं इतना कुछ यहाँ से सीख कर जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम नहीं जानते हैं, पर जिस तरह से यहाँ पर हमने उस पर्यावरण को सीखा, क्रिएटिविटी, जो स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट लेक्चर रहा क्रिएटिव राइटिंग ऑन एनवायरनमेंट, कि आप अपने एनवायरनमेंट से, अपने पर्यावरण से कैसे सीखें और उसको कैसे अपनी क्रिएटिविटी में उतारें, वो बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे लगी। और शाश्वत ने जो तरीके बताए कि किस तरह से हम नेचर और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के बारे में स्टोरी गढ़ने के माध्यम से या कहानी लिखने के माध्यम से खुद के विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे जो 30 बच्चों ने इस कार्यशाला में पार्टिसिपेट किया, सभी बच्चे कुछ नई नई कहानी और कविताओं के साथ आए जो कि उन्होंने मंच पर प्रस्तुत भी की। बहुत से स्कूल के इको प्रभारी और प्रिंसिपल्स और बहुत सारे हमारे टीचर और बच्चों ने हिस्सा लिया, तो बच्चों के अपने उद्गार प्रकट हुए पर्यावरण के बारे में। बच्चों ने कविताओं के माध्यम से या कहानी के माध्यम से
अपने मन के उद्गारों को दर्शाया है। Programs like these, they sow seeds into the minds and hearts of the students, and they can understand that yes, by writing stories we can bring about change in the world where we live in. And this is the reason that I think the schools, along with the studies, should give a knowledge to the students about the sustainability development. Yeah, we know that progress is important, but not at the cost of nature. We need to check out and find the solutions that how we can have the sustainable development where we can protect our earth and conserve our resources. एज इको विज्ञान फाउंडेशन हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं जिसमें हम बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में हम बिलीव करते हैं कि हमारे साथ जितने भी टीचर्स जुड़े हैं उन सभी के अंदर एक नेचुरलिस्ट है जो इनबिल्ट है, तो उसे हम नर्चर करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो 3 दिन की वर्कशॉप रही है वो बहुत ही इंटरैक्टिव रही है। वो बच्चे जो हमारे साथ इसमें जुड़े थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस तरह की वर्कशॉप्स में बच्चे जिन्हें मतलब हम राइट एज पे सेंसिटाइज कर पाएँ एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ पे, ताकि हम मिलके जो है एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना कर सकें। हम जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो जैव विविधता की हैं, चाहे पानी से संबंधित है, कच्चे से संबंधित है, हम कैसे उसे जियो टैग कर सकते हैं। ये कार्यशाला का आयोजन इस 3 दिवसीय कार्यशाला में किया गया और इन सभी दिनों में बच्चों की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच हमें देखने को मिला, जहाँ पे बच्चों ने बहुत रिफ्लेक्टिव, जिसे हम चिंतन बिंदु कहते हैं, उनके माध्यम से अपनी स्टोरीज़ को लिखा और अपने आसपास से होने वाली जो भी पर्यावरण संरक्षण की कथाओं को रोचक ढंग से उनका व्याख्यान किया। ये जर्नी बहुत ही प्यारी रही और हमारा ये कोशिश रहेगी कि आने वाले वर्षों में भी हम इस जर्नी को यूं ही कंटिन्यू रखें। इस वर्ष हमने जस्ट एक ट्राई किया था कि जो टीचर्स हमारे साथ बहुत अच्छे से प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं उनके साथ हम इस कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें। आने वाला समय हिमाचल जो कि एक बहुत मुख्य हॉटस्पॉट भी है और बायोडाइवर्सिटी, आने वाले समय में इन सभी कार्यशालाओं के माध्यम से हम अपने स्कूल्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, बच्चों की कार्य क्षमता को, सोचने की क्षमता को, ऑब्जर्व करने की क्षमता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ये कोशिश यूं ही जारी रहेगी और यही हमारा उद्देश्य है। हम ग्रेटफुल हैं टू अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी रिसोर्स पर्सन्स का, जिन्होंने अपना समय हमें देकर और अपने नेचर एजुकेशन में फ्यूचर जो भी हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं उसके बारे में गहन चर्चा हमारे विद्यार्थियों को एक नया रास्ता दिखाया है।